Hello friends, welcome to one more video. In this video lecture, we will cover this complete point, location, construction and material use. Friends, let's see. Propeller shaft is not only used in automobile sector, but it is also used in marine applications. So accordingly, we will see the different types of material used in marine application also. Then another topic we will cover in this series, function, and last we will end up with the types of propeller shaft. So friends, let's begin. Here we'll see the complete assembly or complete frame of chassis frame. So here as we see the complete chassis frame, so here the radiator, then engine, clutch, gearbox, then here is differential assembly. So basically the location of propeller shaft is in between this gearbox and the differential assembly. So when we move, we will understand the main function, but here the noticeable thing is that the propeller shaft is having universal joint in both the ends and slip joint is there. So let's see, you understand the location. So construction, it is incorporates with sliding joints in between and the universal joint at the end. We will see the function accordingly at the last. देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब प्रोपेलर शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करता है या फ्लो ट्रांसमिट करता है, तो इट विल नॉट ओनली द ट्रांसफर द मोशन और RPM, it will also transfer the torque. So it is important while designing the shaft, we will take care of the torsional factor, or it is also called as a torsional rigidity. One more thing is that while construction, we will take in mind कि shock resistance also be taken into accounts. So इस तरीके से construction हम लोग देख सकते हैं. Now we'll see the material used. So alloy 303 and any low carbon steel material having chromium percentage 10 to 18% and the nickel percentage is 5 to 8%. इस तरीके से कोई भी लो कार्बन स्टील मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ये ऑटोमोबाइल के लिए है ये कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब हम शिप एंड बोट्स की बात करते हैं तो एज वी नो दिस ऑल ships and boat is under water, so corrosion factor is very important. So while designing we should take care of corrosion resistant material, and हमको पता है कि जब हम क्रोमियम किसी मटेरियल में ऐड करते हैं तो उसका corrosion resistant प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाता है. So while selecting the material, chromium is increased so that we can sustain the high corrosion resistant property. So now we will see the function. So basically यहाँ पे फंक्शन समझने से पहले हमको दो चीज़ कंस्ट्रक्शन से समझना ज़रूरी है कि जब प्रोपेलर शाफ्ट का डिज़ाइन होता है तो स्लाइडिंग जॉइंट एंड यूनिवर्सल जॉइंट, ये दोनों ही जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं. तो इसका फंक्शन ये है कि टू ट्रांसमिट द टॉर्क एंड द रोटेशन फ्रॉम इंजन टू रेयर एक्सल. तो रेयर एक्सल में डायरेक्टली नहीं जाता है, वो डिफरेंशियल तक जाता है. देन डिफरेंशियल allows to transmit the rotation to the rear wheel and rear axle. So sliding joint का मतलब होता है कि जैसे ही अनइवन सरफेस आ जाए, मीन्स इस तरीके से अनइवन सरफेस आ जाए, तो जो लेंथ ऑफ द व्हीकल है वो इट स्लाइड्सली इंक्रीज, इस तरीके से ये स्लाइड्सली इंक्रीज हो जाता है लेंथ. तो टू एंड फ्रो जो लेंथ है वो अकोमोडेट करने के लिए, टू एंड फ्रो लेंथ एडजस्ट करने के लिए हमारे पास स्लाइडिंग जॉइंट होता है. वेर एज जब भी इस तरीके से मोशन आ जाए व्हीकल में, तो अप एंड डाउन मोशन ऑफ रेयर एक्सल आल्सो एडजस्टेड बाय द यूनिवर्सल जॉइंट. सो यूनिवर्सल जॉइंट का फंक्शन यही होता है कि ये इस तरीके से मूवमेंट भी एडजस्ट कर सकता है. देन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट भी ये एडजस्ट करता है, और इस तरीके से मूवमेंट हो तो भी ये एडजस्ट करता है. ये तीनों ही मूवमेंट होता है रेयर एक्सल की. सो रेयर एक्सल का जितना भी मूवमेंट है वो यूनिवर्सल जॉइंट और स्लाइडिंग जॉइंट दोनों मिला के एडजस्ट कर सकता है. नाउ
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टाइप्स। सो बेसिकली एवरीवन कैन नो, अगर स्मॉल व्हीकल है तो वहाँ पे हम लोगों को टू पीसेस शाफ्ट की ज़रूरत नहीं है। सो जब भी स्मॉल डिस्टेंस है इंजन एंड एक्सल में, तो हमें सिंगल पीस टाइप यूज़ करना होगा। एंड सेकंड टाइप प्रोपेलर शाफ्ट का है टू पीस एंड थ्री पीस। तो लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल है, लॉन्ग डिस्टेंस इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ इंजन एंड द रेयर एक्सल इज़ लार्ज, तो वो वहाँ पे हम लोग टू पीस एक्सिस यूज़ करते हैं। बट जनरली सिंगल पीस एक्सिस यूज़ होता है लाइट मोटर व्हीकल एंड फोर व्हीलर में। कोई भी जनरली फोर व्हीलर है जो हमको दिखता है वह उसमें हम लोग सिंगल पीस टाइप यूज़ करेंगे। और जो लॉन्ग कंटेनर है और यू कैन से द ट्रक, तो ये दोनों ही चीज़ में हमें टू पीस शाफ्ट यूज़ होता है। सो इन दिस वेरी शॉर्ट टॉपिक, so we cover this propeller shaft. So thank you.